Good morning, students. We are going to deal with the next part, that is past tense. आज हम past tense के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले past indefinite tense. Likewise, present tense, past tense also has 4 parts. Past tense के भी 4 parts हैं. Past indefinite tense, firstly we will deal with. सबसे पहले past indefinite tense के बारे में बात कर लेते हैं. Here in this tense we will use, for simple sentences we will use second form of the verb, but if our sentence is negative or interrogative, always keep this thing in mind that if our sentence is of negative and interrogative kind, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तरह का है तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे. वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन और इंसिडेंट दैट अकर्ड इन पास्ट. किसी भी ऐसे एक्शन और इंसिडेंट के लिए यूज़ करेंगे जो पास्ट में हुआ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी left school last year. She left school last year. We have used second form of the verb. Now take the same example with negative and interrogative sentence. In negative sentence we will say she did not leave school last year. Here in this sentence I used did plus first form of the verb. Same is the case with negative and negative interrogative sentence. For instance, if I say did she not leave school last year, so this is a negative interrogative kind of sentence, and here I have used did plus subject plus not plus first form of the verb then object. So that is the way how to deal with past indefinite tense. 3 things I will tell you, you can keep in mind if you just want to know in 1 second that we should you apply here past indefinite tense. आप 1 सेकेंड में ही पता लगा सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यहाँ पर इस फिलअप में फिल करेंगे. There are 3 keywords related to the past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड 3 keywords आपको बता रही हूँ. Yesterday, last and ago. If you find one of them in any sentence, यदि आप किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक देखते हैं, then you should understand that here I will use past indefinite tense. तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पर past indefinite tense use करूँगी. Likewise, present indefinite tense, you will definitely find at least one fill-up from past indefinite tense. जैसे present indefinite tense important बताया था, इसी तरह past indefinite tense भी काफ़ी important है और इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. You need to keep 2 things in mind. Firstly, the 3 keywords, 3 कीवर्ड आप ध्यान में रखिए. और दूसरी बात, if our sentence is simple, we will use second form of the verb. अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. Otherwise, for negative or interrogative sentence, we will use first form did plus first form of the verb. So, next rule says, this was the first rule. Next rule says that it is used for past habit. कोई भी हमारी past की habit है उसके लिए भी हम ये tense use करेंगे. For example, he helped the poor. Here I have used second form of the verb.
But if my sentence would, I want to make it in negative sense, then I'll use he did not. Here I will use help instead of helped, for that is first form of the verb the poor. यहाँ पर आपको first form of the verb use करनी है, because did will always take first form of the verb. did के साथ आप हमेशा first form of the verb ही use करेंगे. Our next tense is past continuous. In past continuous tense, we will use was or were plus first form of the verb plus ing. was were यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ ing यूज करेंगे. was will be used for singular subject. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए was यूज करेंगे और were यूज करेंगे प्लूरल के लिए. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे. बट वन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी ए भी है कि अगर मैं कहूँ इफ आई वर ए किंग, हेयर यू विल से आई के साथ हमने वर यूज किया है, बट ये क्या है हमारी, दिस इज ए फैंटेसी काइंड ऑफ स्टेटमेंट. ये हमारी कल्पना टाइप की स्टेटमेंट है और ये चीज़ जो है मॉडल्स में यूज़ की जाती है. यहाँ इसका रेफरेंस नहीं है. आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया है, वैसे यहाँ पर इसका कोई रेफरेंस नहीं है. वन थिंग यू कीप इन माइंड दैट was will be used with singular subject and were will be used with plural subject. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगेगा और was लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing. Whether the sentence is simple, it is negative, it is interrogative, it will always take helping verb. helping verb इसमें लगेगी ही लगेगी. इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जैसा नहीं है कि आपको सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है. नहीं, सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी वॉज राइटिंग ए लेटर. वो एक लेटर लिख रही थी. शी वॉज राइटिंग ए लेटर. अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर. एज सिंपल एज दैट. अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, वॉज शी राइटिंग ए लेटर. नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, वॉज शी नॉट राइटिंग ए लेटर. दैट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस. एज सिंपल एज दैट. दिस इज, देयर इज नथिंग टू टेल अबाउट इट. बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में. बहुत ही सिंपल सा टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कई बार इसमें इस तरह के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुई है कोई भी इंसिडेंट, उससे रिलेटेड भी सेंटेंसेस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हेन आई सो हर. इस तरह के सेंटेंसेस भी कई बार देखने को मिल जाते हैं. जब मैंने उसे देखा तो वो सॉन्ग से वो सिंगिंग ए सॉन्ग. पेपर में आपको या तो यहाँ पे फिलअप्स मिल सकता है या यहाँ पे फिलअप्स मिल सकता है. तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखनी है इस तरह के सेंटेंसेस में. अगर दो फिलअप्स देखने को मिलते हैं तो वेदर यू विल, देयर विल बी प्रेजेंट टेंस ऑन बोथ द साइड्स और देयर विल बी पास्ट टेंस ऑन बोथ द साइड्स. यदि आप एक साइड में पास्ट दिया हुआ है तो दूसरी साइड में भी डेफिनेटली पास्ट का ही कोई पार्ट आएगा. यदि एक साइड पे आपको प्रेजेंट दिया हुआ है तो दूसरी साइड पे भी डेफिनेटली आपको प्रेजेंट ही यूज़ करना है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखने को मिलता है कि हमारा टेंस जो है एक सिंगल सेंटेंस में चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पर हमने, यदि हमें सॉ दिया हुआ है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट मीन्स प्रेजेंट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। अगर हमें यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस पहले से ही दिया हुआ है तो हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस भी कई बार पेपर में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टेंस है दैट इज पास्ट परफेक्ट। ये सबसे इजी टेंस है, इजियर वन। इसमें आपको कुछ नहीं देखना किसके साथ आपको क्या लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कुछ नहीं देखना है बिकॉज देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड के साथ हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड के साथ हम क्या लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कई बारी जो है एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। यस, उसने अपना काम खत्म कर लिया था। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। एक और टाइप देख लेते हैं। कई बार जो सेंटेंसेस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर आई विजिटेड हर। मेरे उसके विजिट करने से पहले ही उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको या तो यहाँ पर फिलअप्स देखने को मिल सकता है या यहाँ पर फिलअप्स देखने को मिल सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर चुका था। या तो आपको यहाँ पे फिलअप्स मिलेगा या यहाँ पे फिलअप्स मिलेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जो काम दो इसमें जो है वर्ब्स हैं, तो जो काम पहले हुआ है उसके लिए आपको, जो इंसिडेंट पहले हुआ है उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, और जो बाद में हुआ है उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। एक चीज बताई है आपको कि जो इंसिडेंट पहले हो चुका है, द इंसिडेंट दैट अकर्ड फर्स्ट, पहले जो घटना हो चुकी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। एज सिंपल एज दैट। एक और तरीका इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द, अगर हम कहेंगे, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द बेल had rung before I reached school. स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। But if I say the same sentence in past continuous tense, then it will be the bell was ringing when I reached school. यानी जब स्कूल में पहुंचा उसी टाइम बेल बज रही थी। तो ऐसे केस में हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट। बट इफ द इंसिडेंट हैड ऑलरेडी अकर्ड, यदि घटना पहले ही हो चुकी है तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। लास्ट हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में had been plus first form of the word plus ing plus since or for. Since and for, I have already told you, since will be used for definite
एंड फोर विल बी यूज्ड फॉर इनडेफिनिट टाइम। सिंस आप डेफिनेट टाइम के लिए यूज करेंगे, फोर जो है इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज करेंगे। सबके साथ आपको हैड बीन लगाना है। यू नीड नॉट टू सी वेदर आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, देखने की जरूरत नहीं है सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ हैड बीन लगेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी इसमें लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसी को हम नेगेटिव में बना लेते हैं। शी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। देन हैड शी नॉट बीन वेटिंग फॉर you for 2 hours? Question mark. So these kind of sentences we will deal in past perfect continuous tense. Since and for you must keep in mind, and if in case you find since and for, you must always focus on perfect continuous. That can be present perfect continuous, that can be past perfect continuous, and that can be future perfect continuous depending on the situation of the sentence. सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप यूज करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंस और फोर है तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस डेफिनेटली आप वहां पर यूज करेंगे। सेंटेंस को देखते ही आप समझ जाएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स you can ask me. Thank you. Have a good day.